Hello everyone. So the question is two small balls having equal opposite charge Q on each suspended by two insulating string of equal length L from a hook fixed to the stand. The whole setup is taken in a satellite into space when there is no gravity, state of weightlessness, then tension in each string is. We have to calculate the value of tension in the string, and the situation is given like this. They are saying that there is a fixed hook, or suppose this is the fixed hook, and there are two charges which is having the equal amount. Suppose this is charge Q and the other charge is also Q, and the length is also same. Suppose this is L, so that means this is also L. Okay, now the weight of these point charges are acting perpendicular to acting vertically downward, that is mg. Similarly for this charge, the weight is acting vertically downward, that is mg. But and because of this weight there is tension in this string, that is T, and that is T. But now in the question they are saying that we take this whole setup into a space where there is no gravity. When there is no gravity, that simply means that the value of g, which is the acceleration due to gravity, is 0. That means this whole quantity is 0, mg equals to 0, mg equals to 0. Now the only force which is acting between these point charges will be electrostatic force, and this electrostatic force is repulsive electrostatic force, because both is having the same charge, and if the charges are same at that time, the electrostatic force is repulsive. And when the force is repulsive, that means this force is try to move these charges at the maximum distance. So now the position is look like this. This is Q, this is Q, and this is the center of hook, or I can say that this is the hook. Now this is the maximum distance between these charges because of the repulsive electrostatic force. This length is L and this length is also L. Okay, now the total distance between them is 2L and angle is 180 degree. Now in the question they are asking about the tension. Tension is basically equal to the force. So I can write the tension T equals to basically force is given by force or tension is the same thing. So basically it is K Q1 Q2 Q1 Q2 upon R square. Okay, product of Q1 Q2 upon square of the distance. So I will write tension equals to, and the value of K is basically 1 upon 4 pi epsilon naught. This is the value of K, which is the constant. Now I can write T equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and charges are, first charge is Q, second charge is Q, upon distance between them is 2L. L and L, it is 2L square. Simplifying this, we will have T equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon 4L square. This is the tension in string, which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon 4L square. So let's check the option. The first option, no, it is 4 into 4. So basically it is 16. If I further solving this, I will have Q square upon 16 pi epsilon naught L square. 4 into 4 is 16. So this is the tension, that is equals to Q square upon 16 pi epsilon naught L square. So the last option, which is Q square upon 16 pi epsilon naught L square, is the correct answer. Okay, thank you. In this question, a ring of radius r carried a uniform distribution of charge plus q. A point charge minus q is placed on the axis of the ring at a distance 2r from the center of the ring and released from the rest. Okay, the particle execute a simple harmonic motion along the axis of ring. यही हमको मतलब कि ये स्टेटमेंट दिया है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए हमने एक रिंग बना लिया. ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे एक रिंग बना लिया. ओके, और रिंग का जो एक्सेस है वो यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, और ये कितनी दूरी पे है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू,
जो ये माइनस क्यू चार्ज है वो 2r डिस्टेंस पे है। कितने? 2r। और ये रेडियस कितना है? रेडियस है जो रिंग की वो है, जो रेडियस है रिंग की वो r है। ओके, तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रिंग की रेडियस जो है वो r है। ओके, तो देखिए ये क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, और ये जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ कि डीएल एलिमेंट में कितना फोर्स लगेगा वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ से मैं एक डीएल एलिमेंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो एंगल ये मानता हूँ कि ये थीटा में बना रहा है। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √5r। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा इस डीएल एलिमेंट में वो क्या लगेगा? डीक्यू चार्ज पे लगेगा। और कितना लगेगा? डीएफ लगेगा। डीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये माइनस क्यू वाला, और इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई √5 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स हमको किधर लगेगा? इंटू इंटू और क्या होगा? ये डी एफ मैग्नीट्यूड हो गया। और देखिए यहाँ से इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये होगा डी एफ कॉस थीटा होगा। और ये हो जाएगा इसके ठीक परपेंडिकुलर जो होगा तो क्या होगा? ये होगा डी एफ साइन थीटा। डी एफ साइन थीटा। अगर यहाँ भी एक एलिमेंट लेते हैं डीएल एलिमेंट और इस पे ऐसे डालते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा? यहाँ पे भी एक एक और फोर्स का कंपोनेंट होगा डी एफ कॉस थीटा, और एक और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा ठीक अपोजिट है। ठीक ना, वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे हम हर डायरेक्शन में। ओके, हर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बनाएंगे और अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? सेंटर के तरफ। और वो क्या लगेगा? वो लगेगा डी एफ कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं डी एफ का मैग्नीट्यूड रख चुका हूँ, तो डी एफ क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बाई √5r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार 2r डिवाइडेड बाई कर्ण। कर्ण क्या है? √5r। तो ये हो जाएगा 2/5 √5। ओके, तो डी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बाई √5r। ओके, स्क्वायर इंटू कॉस को कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2/√5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अब पूरे रिंग पे जो फोर्स लगेगा उसको निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो F कैसे निकलेगा? F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2πr। ओके, यहीं पे यहाँ से अगर चलते हैं और एक चक्कर लगाते हैं तो कितना चलेंगे? 2πr चलेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बाई √5r होल स्क्वायर इंटू 2/√5। ओके, और इस डी क्यू को निकाल सकते हैं। देखो डी क्यू डीएल एलिमेंट में कितना है? डीएल इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू चार्ज है रिंग पे डिवाइडेड बाई 2πr इंटू डीएल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये इतने इतने एलिमेंट में, मतलब डीएल एलिमेंट में जो चार्ज है वो इतना हुआ। ओके, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ये डी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है,
तो डी क्यू इज इक्वल टू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √5 r होल स्क्वायर इंटू 2/√5 और डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू है क्यू डी एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ओके, और अच्छी बात यह है कि डी एल जो है, डी एल क्या है, डी एल की वैल्यू क्या होगी, डी एल इज इक्वल टू 2 पाई r ही तो होगा, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं, रिंग का ही छोटा छोटा एलिमेंट जो डी एल लिया उसी को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √5 r होल स्क्वायर इंटू 2/√5 इंटू क्यू बाई 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये आ रहा है हमारा 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू 5 r²। ओके, और ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/r², न कि f इज प्रोपोर्शनल टू r माइनस r। तो जब f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस r रहता तब हम बोलते कि ये जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, लेकिन ये f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो ये पार्टिकल SHM नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और जनरल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब पार्टिकल को ना इस सेंटर से काफ़ी दूर रख देने पे ये SHM नहीं करता है। SHM करने के लिए जो r की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कभी कभी आप इजीली इसको बता सकते हैं कि बहुत दूरी पे है, जैसे 2r यहाँ पे है तो ये बहुत दूर हो गया, क्योंकि रेडियस ही जो ये सर्कल है इसका रेडियस ही क्या है, r है। अब r के कंपेयर में 2r बहुत दूर हो गया, तो इसलिए ये SHM नहीं कर रहा। अगर पास में होता r/2 होता, r/4 होता तो ये जरूर SHM करता। ओके, Hello everyone, let's start the question. Question says that a system of three charges are placed as shown in the figure. If D, capital D is greater than D, the potential energy of the system is best given by. So if you see in the picture, here are three charges, plus Q, minus Q and capital Q. So we have three pairs, plus Q and minus Q and capital Q and plus Q and capital Q. So three pairs. So the total potential energy will be, total potential energy will be U1 due to plus Q and minus Q plus U2 for minus Q and capital Q plus U3 for plus Q and capital Q. So if we write for U1, we can write K plus Q into minus Q divided by the distance between them is D plus K minus Q into capital Q by the distance between them. So we can see this is the distance D, and the distance between minus Q and capital Q is less than the D. So it is the distance between this two is D. So half will be D by 2 and this half will be D by 2. So distance between minus Q to Q will be D minus D by 2. So we can write D minus D by 2, okay, plus K capital Q and Q, okay.
we can write capital Q into plus Q divided by distance between them. So we can see that this distance is d and this one d by 2. Okay, it is d by 2. So here distance will be d, distance will be capital D plus d by 2. Now we are solving further. This will be minus k q square by d plus this one k. We are taking common k, q and small q. It will be k, q and capital Q, and inside the bracket 1 divided by minus 1 divided by d minus d by 2 plus we have taken common, so here it will be 1 by d plus d by 2. Now we can write minus k q square by d plus k q capital Q, and inside bracket what we can write? We can write, if we take LCM of this will be d square minus d square by 4, and here it will be d minus d by 2 plus d minus d by 2. So this d and this d both are cancelled out. Also in the question, let's write this one first. So we can write k q square by d plus k q capital Q and inside bracket. So minus d by 2 minus d by 2, it will be minus d, and here in the question it is given that the d is greater than d, so this quantity will be very small, so we can write here only d square. Now if we write this equation, then this will be k q capital Q into minus d divided by d square. Now we are taking common, that is k, and then inside it will be minus q square by d, and here minus into plus, that is minus q into d by d square. So if we substitute the value of constant, that is 1 by 4 pi epsilon naught, and we rewrite the rest of the equation, it will be minus q square by d minus q capital Q d by capital D square. So this is our final answer. So if we check the options, the correct option is 1 by 4 pi epsilon naught minus q square by d minus q capital Q small q d by d square. So this is the correct answer. So we can write the correct answer is u equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus q square by d minus q into capital Q into d by d square. Thank you. Hello everyone, this question says that the electric field in a region is given by E equal to Ax plus Bi cap. E is in Newton's coulomb and X is in meter. The value of A constant is given 20 and the value of B constant is given 10. If the potential at x equal to 1 is given V1 and potential at x equal to minus 5 it is given V2, then V1 minus V2.
So in this question, we need to find out the potential difference of V1 and V2, that is V1 minus V2. The electric field is given in x direction, which is equal to Ax plus B, and it is in I cap, so it is only acting, electric field is only in x direction. The value of constant A is given 20, and the B, it is given 10, and at x equal to 1, the potential is V1, and at x equal to minus 5, potential given is V2. Now we know a relationship between E and potential, which is E equal to minus dV by dx. So this is the relation, E equal to minus dV by dx, where E is the electric field in x direction and dV is a small change in potential. So taking dx on the other side, E dot dx equal to minus dV. Now if we integrate, we will get the value. So at lower limit, at x equal to 1, at x equal to minus 5, the lower limit, potential is V2. At x equal to minus 5, potential is minus V2, and at x equal to 1, potential is V1. So minus 5, the potential is V2, lower limit, and at x equal to 1, the potential is V1. So if we integrate the value, E for the value Ax plus B dot dx, and the integration of dV is a V2, and the V1 negative sign, and the lower limit for the left hand side is minus 5 and 1, and we know the integration of x is x square by 2, so A x square by 2, and for the B the coefficient is 1, so B into x, and the limit is, lower limit is minus 5 and the upper limit is 1, and the V, putting the value of limit, it is V1 minus V2, and it make negative sign. Now we will put the value of A and B. So value of A is 2x is 20, so 2x square by 2 plus B is 10, so 20 by 2 plus 10x, with lower limit minus 5 and upper limit 1 equal to minus V1 minus V2. Now the 2 and 20, it will 10, we will take the common 10, so 10 into x square plus x, limit is minus 5 to 1, taking negative on the other side, minus 10, V1 minus V2. So we can rewrite this V1 minus V2 equal to, so we will rewrite it, V1 minus V2 equal to minus 10 x square plus x, limit minus 5 to 1. So just we will put the lower limit and upper limit, so minus 10, so we can change the limit, upper limit and lower limit, to cancel this minus, which is, if minus function fx having the limit minus sign and the limit ab, we can change it b to a fx. So we using this formula, v1 minus v2 equal to 10 x square plus x, limit, changing the limit, minus 5 and 1. Now for further calculation, v1 minus v2, putting the value for minus 5 square and
minus of 1 plus minus 5 plus minus plus 1. So 10, 5 minus 5 square 25, minus 1 minus 5 plus 1. So here it will be minus 1. So calculating this, 10, 25 minus 7. So it comes to be 10 into 18. So V1 minus V2 is equal to 10 into 18. Therefore potential difference V1 minus V2 is equal to 180 volt. So from this, let's check which option matches. So option C, 180 volt. हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू एंड रेडियस कैपिटल आर इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। आपको लगे आपके पास जो है कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू है, ठीक है, एंड उसके एक्सिस के ऊपर जो है आप यहाँ पे आपको क्या करनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, ठीक है। रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर दी गई है, और कौन सी डिस्टेंस में फाइंड करनी है, डिस्टेंस सेंटर से जो है एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो है उसके एक्सिस के ऊपर क्या करनी है आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो है फाइंड करनी है, ठीक है। एंड आगे आपको लगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, आपको लगा कि एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे आपको जो है फाइंड करनी है। सो देखिए और आंसर, ठीक है। सो आपको बोला गया आपके पास जो एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, ठीक है। सो ये हमने मान लिया आपके पास जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, ये क्या आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सो एंड इसकी रेडियस यहाँ पे आपको दी गई है कैपिटल आर, ठीक है। सो यहाँ से सेंटर से और ये रेडियस, ठीक है, ये कितनी दे दी गई आपको यहाँ से कैपिटल आर, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपको जो बोला गया कि एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आपको क्या करनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यहाँ पे एक्सिस के ऊपर फाइंड करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास एक्स, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे है कैपिटल ई, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर जो है एक्स डिस्टेंस के ऊपर, वो यहाँ पे जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा जो उसकी एक्सिस के ऊपर जो एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे क्यू जो है ये चार्ज है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल आर यहाँ पे जो है क्या है, डिस्टेंस ऑफ, ये सॉरी रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे आपके पास, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। एंड एक्स क्या है यहाँ से आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। ये जो पॉइंट पी जो है इसकी सेंटर ऑफ रिंग से डिस्टेंस, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे जो है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसको जो है आप जो एक्स के सापेक्ष यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। सो अगर आप इसको एक्स के सापेक्ष यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं आपके पास कितना बन जाएगा, देखिए आपके पास बन जाएगा डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से के क्यू जो है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष तो के क्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो के क्यू तो आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए आपके पास बच गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। दैट मीन्स एक आपके पास अंश बच गया, एक आपके पास यहाँ क्या बच गया, हर बच गया, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल क्यूब, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होगा तो यहाँ से 2 जो और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो होल स्क्वायर होगा उससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगी होल क्यूब, ठीक है। इनटू ये जो यहाँ पे आपके जो आपने जो है यहाँ पे ये हर जो लिखा है ये हर ऐसा कैसा, ठीक है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, हरा नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इंटू अंश का अवकलन, अंश यहाँ पे क्या है एक्स, और एक्स का जब आप एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस
अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे ये जो अंश जो है दैट मीन्स एक्स जो है इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे इनटू, यहाँ से आपके पास जो ये जो यहाँ पे हर जो दिया गया है, ठीक है, न्यूमरेटर जो दिया गया आपको, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो हर जो है इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। सो आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 को अगर आप एक्स के सापेक्ष में अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे 3/2 आपके पास यहाँ जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू, अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखिए आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 -1 दैट मीन्स 1/2, ठीक है, इनटू इनटू ठीक है, यहाँ पे जो है 1 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 3/2 का यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट किया, अब अंदर एक्स स्क्वायर बचा इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x, ठीक है, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से ये कितना हो गया आपके पास, ये यहाँ से आपके पास हो गया डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा के क्यू इंटू ये कितना हो गया आपके पास, ये तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर के होल स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये कितना हो गया यहाँ से आपके पास, ये आपके पास हो गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर के होल स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x और यहाँ पे ये x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल क्यूब, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, यहाँ से आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो कंसेप्ट जो होता है, ठीक है, वो लगा देंगे यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डी अपॉन डी एक्स जो है उसको क्या कर देंगे यहाँ पे एक बार जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे डी ई अपॉन डी एक्स इसको किसके इक्वल कर देंगे यहाँ पे जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो जैसे आप इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे देखिए डी ई अपॉन डी एक्स इसको आप जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू अंदर यहाँ से आपका सोच गया के क्यू इंटू ये आपका सोच गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, माइनस ये यहाँ से आपका सोच गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर की होल स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2, ठीक है, इंटू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर के होल स्क्वायर की होल क्यूब, ठीक है। सो अब यहाँ से देखिए ये आपके पास यहाँ से हो गया जीरो, ठीक है। सो अगर आप इस जीरो से अगर आप ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल क्यूब ये किस में है यार, इधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट मीन्स जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल क्यूब, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से जीरो एंड इधर ही आप कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये तो आपके पास हो गया जीरो इज इक्वल टू इधर आपके पास हो गया के क्यू इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के क्यू इंटू अंदर क्या क्या बचेगा वो देखिए आप, देखिए यहाँ पे के क्यू जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, वही देखिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल क्यूब जो है उसको इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में से इधर मल्टीप्लाई गया जीरो हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे के क्यू जो है वो किस में है मल्टीप्लाई में, और दोनों के मल्टीप्लाई में यहाँ पे के क्यू, ये भी आपको पता है के क्यू क्या है यहाँ इस पूरे स्टेटमेंट के मल्टीप्लाई में के क्यू, बिकॉज के क्यू तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट था, ठीक है। सो के क्यू क्या करेगा यहाँ पे इस तरफ के क्यू जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा जो स्टेटमेंट है यहाँ से आपके पास बनेगा, एक सेकंड में लिख देता हूँ, जीरो इंटू यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल क्यूब, ये तो इसके जीरो को चला जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड, और के क्यू यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये किस में जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। सो ये पूरा स्टेटमेंट जीरो से मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा जीरो, एंड अंदर कितना बच गया आपके पास, ये आपके पास यहाँ से बच गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो ये कितना बच गया आपके पास, ये आपके पास बच गया यहाँ से -3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2, ठीक है। सो ये क्या हो गया कंप्लीट जीरो, ठीक है। सो ये जीरो हो गया एंड यहाँ पे देखिए -3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 1/2 होती है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये पूरा पूरा के किसके इक्वल हो गया, ये पूरा पूरा हो गया जीरो के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास बन जाएगा
3x² या -3x² इंटू x² प्लस r² पावर 1/2 को हम किसके ले आए इक्वल टू के साइन के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये सारा जीरो हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3x² इंटू x² प्लस r² की पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू इस तरफ आप क्या हो जाएगा x² प्लस r², ठीक है, x² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, सो यहाँ से देखिए x² प्लस r² की पावर 1/2 एंड x² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे कितने बच जाएगी, आप क्या सोचेगा x² प्लस r² की पावर 1। ठीक है, वाई बिकॉज आप इसको यहाँ से देखिए, आप जो है इसको क्या राइट कर सकते हैं, आप ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप राइट कर सकते हैं कि x² प्लस r² की पावर 1 इंटू x² प्लस r² की पावर 1/2, आप इसको इस प्रकार राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा x² प्लस r² की पावर 1/2 जो है वो इस x² प्लस r² की पावर 1/2 से जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से ये कितना बच जाएगा आपके पास, ये स्टेटमेंट आप यहाँ से आपके पास हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया इस x² प्लस r² पावर 1/2 से, इज इक्वल टू इस तरफ कितना हो जाएगा आपके पास, ये x² प्लस r² पावर 1। ठीक है, दैट मीन्स ये आपके पास हो गया इस तरफ x² प्लस r²। ठीक है, अब x² इस तरफ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 3x² माइनस x² कितना हो जाएगा आपके पास 2x² इज इक्वल टू आपके पास हो गया इधर r²। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास x² इज कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ गया r² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो अब आप जो है दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस r/√2। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है ये x² है ना, यहाँ से x²। ठीक है, क्या है यहाँ से x²। ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो है यहाँ पे दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लिया, तो जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया तो x² का तो x बन गया और r² का r बन गया एंड जो 2 जो है वो उसका क्या हो गया यहाँ पे √2। ठीक है, और किसमें प्लस माइनस में। ठीक है, सो x की यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस r/√2। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में आपको जो x की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास, x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस r/√2। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस r/2। ठीक है, सो अभी देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ से देखिए अब आपके पास आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी, ई मैक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, वो कितनी थी हमारे पास, वो हमारे पास थी KQX। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी KQX अपॉन x² प्लस r² पावर 3/2। ठीक है, रिंग के कारण थी ये एक्स के ऊपर, रिंग के कारण उसके एक्सेस के ऊपर किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर थी वो। ठीक है, सो यहाँ पे KQ इंटू एक्स, एक्स की जगह हमें क्या लिख देंगे, एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, दैट मीन्स r/√2 डिवाइडेड बाई, और क्या था यहाँ पे आपके पास नीचे x² प्लस r² और 3/2। ठीक है, सो x² दैट मीन्स r/√2 का होल स्क्वायर प्लस r² की होल पावर 3/2। ठीक है, सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिए ये यहाँ से आपके पास हो जाएगा ई मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा। देखिए ऊपर तो आपके पास हो गया KQ इंटू कैपिटल R। ठीक है, KQ इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई KQ इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई नीचे कितना बच गया आपके पास, देखिए यहाँ से नीचे आपके पास हो गया r²/2 की होल पावर 3/2। ठीक है, एंड ये √2 जो है यहाँ किस में आ जाएगा नीचे, तो यहाँ तो आपके पास हो गया √2 इंटू r²/2 प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, सो यहाँ से देखिए अब अंदर आप जो है यहाँ से इन दोनों में से जो है 2 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा r² प्लस 2r² दैट मीन्स 3r²/2। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ई मैक्स। ठीक है, ई मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ई मैक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, देखिए यहाँ से ऊपर तो आपके पास हो गया KQR डिवाइडेड बाई आपके पास हो गया √2 एंड अंदर जो आप जो क्या कीजिए 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास हो गया यहाँ से √2 इंटू यहाँ से आपके पास जो है 2 एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा r² प्लस
2r², ठीक है, की होल पावर 3/2, ठीक है। सो यहाँ से देखिए आपके पास ई मैक्स कितना बचा, यहाँ से आपके पास ई मैक्स इजिकल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 और √2, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास √2, ठीक है। सो दैट मीन्स या तो आपके पास बच गया 1/√2, ठीक है। सो यहाँ से आप जो इसे सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास, और ये 1/√2 बचे, या फिर आप चाहो तो ये जो 2 जो है, सॉरी यहाँ पे 2 के ऊपर जो है 3/2 यहाँ पे क्या है, पावर भी तो है, ठीक है। सो ये आपके पास पूरा कितना बन गया, ये आपके पास यहाँ से पूरा बन गया KQ कैपिटल R डिवाइडेड बाई, ये तो आपके पास हो गया √2, और अंदर क्या हो गया आपके पास 3r²/2 की पावर 3/2, ठीक है। सो यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास जो यहाँ से टोटल बन जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा किसके, KQ 2r डिवाइडेड बाई 3√3 r की होल क्यूब, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो 3r²/2 जो है इसकी जो होल पावर यहाँ पे 3/2 जो दी गई थी, हमने जो है इसको यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास ई मैक्सिमम क्या वैल्यू यहाँ से आपके पास पूछी थी, ठीक है। सो ई मैक्स इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ई मैक्स इजिकल टू यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखिए की वैल्यू यहाँ से आपके पास होती है 1/4πε0, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होती है यहाँ पे के की, ठीक है। इंटू क्या क्या आपके पास 2q, ठीक है, और r के होल क्यूब से एक r कट जाएगा तो r के होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। सो ऊपर तो आपके पास गया इंटू, ठीक है, 2q डिवाइडेड बाई r, और r के होल क्यूब, तो r के होल क्यूब में से एक r जो इस r से कट जाएगा तो ये आपके पास यहाँ में नीचे बच जाएगा 3√3r², ठीक है। सो ये आपके पास बच गया यहाँ से 3√3r², ठीक है, 3√3r²। सो यहाँ से ई मैक्स वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये वाली, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई यहाँ से ई मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है, 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन 3√3r², ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास ई मैक्स की वैल्यू, ठीक। थैंक यू। Hello students, our question is assume that an electric field E is equal to 30x² I cap exists in space. Then potential differences VA minus V0, where V0 is potential at the origin, and VA, the potential at x is equal to 2 meter. So we have to find potential difference, that is VA minus V0. Okay. Now we know that potential difference between any two points in an electric field given by dV is equal to minus of E dot dx. Right? Now we have dr is equal to dxi cap plus dyj cap plus dzk cap. Now our dv will be equal to minus of E dot dx. So if we integrate both these sides, so limit will be V0 to VA and 0 to 2. Here given electric field is 30x² I cap. Okay. So VA minus VO or V0 will be equal to minus of 30x². Now I cap dot I cap because we know that I cap dot j cap and I cap dot k cap is 1 into dx. Okay. So limit will be 0 to 2. So our VA minus V0 will be equal to
minus of 30x cube upon 3 and limit will be 0 to 2 again. So finally VA minus V naught is equal to minus of 30, x given is 2 meter. So 2 cube upon 3, that is VA minus V naught is equal to minus 80 volt. So our answer will be C. Okay, thank you.